Punjabi Film Festival, organized by Talking Films Online and curated by Balpreet Kaur. Balpreet is a writer, filmmaker, poet, voice artist, and university teacher. She has written and directed 4 feature films for PTC box office. Due to some family commitments, she will not be able to join us today. Ruchika Dhillon will initiate the discussion. Ruchika is a graduate of Persian language and literature from JNU, New Delhi. I'm happy that the filmmaker of Chum, the film we are discussing today, is also with us. Rajiv Kumar is an award-winning filmmaker. He has directed 6 feature films and some short films. His film Nabar won the National Award for Best Punjabi Film for 2012. It was also the closing film at the Punjabi International Film Festival, Toronto in 2013. His films have been the subject of research in several universities. Rajiv Kumar has had a long stint with television. He was the team director for Surabhi, which was the longest running cultural show on DD from 1997 to 1999. He has worked as professor and head of Department of Journalism and Film Production, Lovely Professional University, Fagwada. Currently, he's pursuing a PhD from Delhi University on comparative study of Latin American diasporic cinema and Punjabi diasporic cinema. Welcome to you, Rajiv. Thank you for coming for this discussion, and welcome to all of you present here. Over to you, Ruchika. Thank you, ma'am. I'm really glad we have the director with us today. So I'm going to keep my introduction really short. I was traveling and I couldn't read up more. So it's just going to be from the textual analysis of the film. It's a film that's based on a written story. So it's in a way an adaptation, or at least it's influenced by the story much. I've not read the story myself, but I'm sure it worked really well for me. So, just a few things that I noticed about the film. First half of the running time, I was quite disappointed actually. I felt that, it's just going to be one more um, ironical, tragic ending film, which gets you involved in an emotional entanglement. But the story drastically changed very soon. It was almost like we were seeing 2 different stories in the scope of a single narrative. And that completely changed the view of films which usually take up issues of caste politics and social justice. So this sort of the narrative building that the film carried on, that it had multiple endings in a way. The death of the little child was one such ending, and then the newer storyline, which started with the vet doctor and the collective farming, where it ends finally, and a certain coming out of the landlord system that these marginalized farmers were trying to do. This multiple stories being a part of a single narrative made it far more interesting than a film which was out and out like a propaganda film, out and out debating and arguing for a socially just society. So that's one aspect that I really liked about the film. And second thing is that since it's a Punjabi cinema month that we are doing, and being from Punjab, when I meet people who are not from the state, they have this assumption that, oh, Punjab has a lot of Sikh population, and it's somehow out of the caste barriers, which I think was also the point of making this film, that in the Punjabi oeuvre of Punjabi cinema oeuvre, even the popular films like the one we saw by Gurvinder Singh last time, sometimes fail to address this question of caste politics, which is very much present in both the rural and the urban Punjab of today.
Apart from this, about the formal style of the film, I hope most of you have watched it. I don't have anything specific to say about it. I'm hoping to hear more from the people, and I have a couple of questions actually for the director here, which I'll take once everyone has given their input. I'm sorry for the brief length of my presentation, but I'll just end that here. Yeah, thank you, Ruchika. Yeah, a brief presentation, but certainly some important points there, especially your point about the caste narrative of the film. It is certainly a film, I think, in fact, made with the almost singular purpose of representing this, the issue of caste in Punjabi society, something which is, I think, almost completely ignored in most Punjabi cinema, as well as Hindi cinema, which depicts a lot of dominant Punjabi culture. And also a lot of people are not even aware of the fact that Sikhs actually practice the system of caste, because Sikhism came into being as a critique of Hinduism, and in theory, definitely it is against caste, right from the founder of Sikhism, Guru Nanak, and then subsequently Guru Gobind Singh, by making the Khalsa, by forming the Khalsa Panth, had denounced this practice of caste. But there's also this, there is, of course, a debate around caste in Punjabi society, and there is this feeling that even the gurus, although they were anti-caste, they were anti-caste in the sense that they did not believe in the hierarchy of caste. Like, they did not say this caste is high and this is low. They said all castes are equal, but caste continued to prevail. And there were these, there are these, I think, Mazhabi Sikhs, who are considered the lower castes, as against the Jats and the Khatris and the Aroras. So I'm sure Rajiv Kumar will be able to tell us about this far better than I ever can. So I think maybe we would like to call upon the director. Would you like to say something, Rajiv Kumar? जी बिल्कुल, जो रुचिका ने बात की है, जो आपने बात की है, उसमें काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि ये फिल्म बनाने का मेरे मन में विचार कहाँ से आया। बिल्कुल आपकी बात सही है। जब नाबर फिल्म के लिए जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, तो वो फिल्म एक छोटे किसान की कहानी थी। उसके बेटे को जो फेक ट्रैवल एजेंट हैं वो बाहर ले जाने का वादा करते हैं और उसको मार देते हैं, तो उसके फादर की स्ट्रगल थी उनको सजा दिलवाने की। लेकिन वो एक छोटे किसान की कहानी थी। तो मैं उस जो एक टाइप कास्ट काम होता है कि जो फिल्म आपकी एक बार सक्सेसफुल हो जाती है या एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो फिर आप वैसी फिल्में बनाना शुरू कर देते हो। आमतौर पे ऐसा होता है। तो मुझे ये था कि मैंने एक छोटे किसान की कहानी कह दी है। अब हमारे पंजाब का जो बहुजन समाज है, जिसको दलित समाज भी कहा जाता है, वो पंजाब का काफी सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी का काफी बड़ा हिस्सा है। मतलब मोर देन 30%, 30 और 40% के बीच में पॉपुलेशन है उनकी। लेकिन हमारे सिनेमा में उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, थोड़ी बहुत कहीं कभी कभार होगी, लेकिन कभी उनको प्रोटैगनिस्ट बना के भी पेश नहीं किया गया। और अगर किया भी गया है तो
वो उन लोगों तक पहुंची नहीं फिल्म, क्योंकि मेरा मकसद इस फिल्म को बनाने का ये था कि एक तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली उनकी होनी चाहिए, और दलितों के अंदर भी, बहुजन के अंदर भी जो दलित औरत है उसकी स्थिति और भी खराब है। मतलब एक तो दलित तो जो हमारी एक कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आती हैं, लेकिन जो दलित औरतें होती हैं वो उससे भी नीचे आती हैं, तो वो भी मैं बात थोड़ी कहना चाहता था। लेकिन मुझे ये था कि जैसे रुचिका ने बात की कि वो बहुत ही पैथोस वाली फिल्म ना हो, कहीं पॉजिटिव कुछ हुआ हो, कहीं लोगों ने संघर्ष किया हो और उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकला हो, मैं उसको भी कोलैबोरेट करना चाह रहा था। तो काफी सारे जो पंजाब के इश्यूज थे उनको मैंने ऑर्गेनिकली इस फिल्म में लाने की कोशिश किया, जैसे रुचिका ने कहा, और आपने रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया, आपको पता ही है। और एक चीज मैं जरूर इसमें शामिल करना चाहूंगा कि एक दो जो फिल्में दलित प्रोटैगनिस्ट को लेके या बनी हुई हैं, वो फिल्में उस ऑडियंस तक पहुंची नहीं है जिनके बारे में वो फिल्में हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था। मतलब कई बार क्या होता है कि आप जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके बारे में सिनेमा बनाते जरूर है, लेकिन वो सिनेमा दिखाया जाता है विदेश में कहीं फिल्म फेस्टिवल में या कहीं पे भी, वो उन लोगों तक कभी पहुंचता नहीं है जिनके बारे में वो सिनेमा है। वो उनको इंस्पायर नहीं करता या उनसे कुछ फीडबैक नहीं मिलता हमको कि ये हम आपकी लाइफ दिखा रहे हैं, क्या ये आपको इंस्पायर कर रही है, या आप कंसर्न फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप किसी फिल्म के हीरो हो सकते हैं, किसी कला फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो ये सारे सवाल भी थे मेरे, मतलब दो कंसर्न थे, एक तो डेफिनेटली फिल्म बनाना, लेकिन वो फिल्म फिर उन्हीं लोगों तक लेके जाना, वो मेरा उससे भी बड़ा कंसर्न था। तो हमने इस फिल्म के साथ क्या किया, फिल्म बनाने के बाद हम इसको पंजाब के लगभग 500 से ज्यादा गांवों में लेके गए। तो वो एक पायनियरिंग काम हमने जरूर किया, और गांवों में भी दिखे क्या है, हर गांव में मतलब चीजें फिक्स हैं। गांव का जो स्ट्रक्चर है उसमें मतलब दलित एक खास जगह पे रहते हैं आमतौर पे, तो उस स्पेस पे कभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी गांव की होती नहीं है। अगर गांव में कोई कल्चरल एक्टिविटी किसी किस्म की भी होती भी है, वो अलग स्पेस में होती है। तो हमने बहुत ध्यान रखा इस बात पे कि जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग हो तो उस स्पेस में करें, ताकि जिन लोगों के बारे में हम लोगों ने फिल्म बनाई है वो इसको देख के हमारे से इंटरेक्ट कर सके, हमको समझ में आई ये बात कि हम उनकी सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो बात हमको उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं वो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी मेरे दिमाग में, जिसको लेके हमने ये फिल्म बनाई। और बहुत सारी ऐसी वर्जन स्पेसिस पे हमने इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जहां पे कभी पहले, मतलब फिल्म स्क्रीनिंग तो अलग बात है, मतलब किसी भी किस्म की कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा हुई नहीं। तो बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस फिल्म को देखने आती थी, खास तौर पे क्योंकि हम एफर्ट करते थे उसके लिए, और खास तौर पे दलित औरतें आती थी। तो उनके साथ बाद में हमारी जब इंटरेक्शन होती थी तो बहुत सारी औरतें हमको कहती थी कि हमारी फिल्म है। लेकिन हमारे को पहले फिल्मों में दिखाया नहीं गया, और हमको कभी लगा नहीं कि हम भी फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। हमको लगता है था कि हम तो सिर्फ दर्शक हैं, लोगों के बारे में फिल्में बनती हैं और हम उनको देखते हैं, लेकिन ये फिल्म हमारे बारे में। तो फिल्म में काफी सारे इश्यूज थे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने उसके साथ कनेक्ट किया। तो ये एक चीज है जो हमें लगता है कि हमने फिल्म बनाने के साथ, मतलब ये भी एक काम किया है। और तीसरा, मैं इस फिल्म का जो मॉडल है, प्रोडक्शन मॉडल है, उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि हमको ये था कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, और इसमें ना तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहिए और ना ही किसी टिपिकल जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउस होते हैं उनका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता फिल्म के ऊपर, मतलब कि कहाँ पे दिखाई जानी चाहिए और कहाँ पे भेजी जानी चाहिए। तो हमको ये क्लियर था कि हम इसको गाँव में लेके जाएंगे, वो हमारी प्रायोरिटी है, और गाँव में उन दर्शकों तक लेके जाएंगे जिनके बारे में ये फिल्म है। तो इस फिल्म में मतलब सब्जेक्ट मैटर के अलावा हमने ये दो चीजें की कि एक तो कलेक्टिव प्रोडक्शन मॉडल रखा इस फिल्म का,
और दूसरा इसका जो एग्जीबिशन का फॉर्मेट है उसमें भी हमने थोड़ा पाइनियरिंग काम किया। और हेल्प इसलिए हो गई उस मॉडल का, हमको इसलिए पता था क्योंकि मैं बेसिकली थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ। बहुत साल तक गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किए हैं। गुरशरण सिंह हमारे एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं जो लोगों के दुख दर्द और उनके संघर्ष को लेकर नाटक करते थे, तो हम उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। तो गांव में हम जाते थे नाटक करने, तो मुझे ये था कि गांव में असली ऑडियंस बैठी है जो मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इकोनॉमिकल रीजन है और भी कई तरह के रीजन हो सकते हैं, तो हमको उन तक सिनेमा लेके जाना है। तो ये कुछ चीजें हमने इस फिल्म के साथ की। Thank you, Rajiv ji. It's open for discussion if anyone would like. Yes, I have Jayanto? a couple of follow-up questions for sir. And thank you, Oh, sir, for sharing this with us. Actually, I read about the screenings that you did in the areas, which is great. बट मेरे को एक बात उसमें ये पूछनी थी कि आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हमको बता सकते हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल दैट यू इंटरेक्टेड विद। देखिए The ownership part, I understand that they felt कि we can see our own selves on the जी, screen. मैं आपको मतलब उनके रिएक्शंस, अलग अलग तरह के रिएक्शन बताता हूँ जो अलग अलग गांवों में हमको मिले हैं। कुछ जगह पे मैं खुद प्रेजेंट था, कुछ जगह पे मेरी बाकी के टीम के मेंबर थे। तो एक तो बहुत इंटरेस्टिंग रुचिका चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है मुल्लापुर, जिसको नाम है उसका। तो हम सब लोग जो फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम उस छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं और हम एक थिएटर ग्रुप में काम करते थे सब लोग। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे फिल्म बनाएंगे और उसको गांव गांव में लेके जाएंगे। कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया और जो हमने उसका प्रोड्यूस भी उसको खुद के पैसे से किया मिलके, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे दिमाग में था कि ये फिल्म को गांव में लेके जाना है तो किसी प्रोडक्शन वाले को इन्वॉल्व नहीं करना है। और उसके बाद हम लोग, वही लोग जिन्होंने फिल्म बनाई थी, वही गांव गांव में इसको लेके जाते थे। मतलब मैं एज एन डायरेक्टर लेके जाता था, तो जो प्रोटैगनिस्ट है, कीपर का रोल जिसने किया है, वो हेडमास्टर है एक स्कूल में, हमारे थिएटर ग्रुप के साथी हैं, वो साथ में होते थे। समटाइम जो उसके एक और प्रोड्यूसर है तेजिंदर तीर, वो होते थे, वो गाड़ी चलाते थे, उनकी गाड़ी में हम लोग जाते थे। तो कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमको ये था कि जब ये फिल्म हम लोगों को दिखाएं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं या कोई चैरिटी कर रहे हैं। तो हमको उनको इन्वॉल्व करना था। तो गुरशन सिंह जिनके साथ मैं थिएटर करता था, वो जिस भी गांव में जाते थे, वो सब लोगों को कहते थे ये आपका थिएटर है, ये आपकी हेल्प से चलेगा, तो आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंट्रीब्यूट करो, ताकि आप हिस्सा बनो इसका। ऐसा नहीं कि हम आपके लिए कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे जोड़ना है। तो कुछ जगह पे हमने लोगों को बोला कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, कि इस फिल्म में जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें आप करें। तो बहुत सारी बुजुर्ग औरतें जो हमको पता है कि बहुत ही मार्जिनलाइज मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आती हैं, वो हमको ये कहती थी बहुत जगह पे कि हमको पता नहीं था कि ऐसे हमको कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन हमको फिल्म ने इतना अपील किया, आप जाइए मत, हम लोग अभी घर जाएंगे और जो भी हमसे होगा हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम देखते थे उनके हाथ में 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, जो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल मनी थी, लेकिन वो लोग आके कंट्रीब्यूट करते थे, उनको लगता था कि ये हमारा कॉज है। एक तो ये बात होगी। और दूसरा ये है कि बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग मिले। एक जगह पे मेरे जो प्रोटैगनिस्ट है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि एक बंदा आया और वो लिटरली शेक कर रहा था। ये बाकी लोगों से बात कर रहे थे फिल्म की समाप्ति के बाद। एक बंदा आया और वो बहुत लोगों से मतलब शेक कर रहा था। तो इसको लगा कि पता नहीं इनको गुस्सा आ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने उनको थोड़ा काम डाउन किया। फिर वो बंदे ने मतलब रोने लग गया वो बंदा। तो इसने पूछा कि क्या हो गया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, कुछ गलत बात हो गई फिल्म में? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरी फिल्म है, मतलब जो आपने कहानी दिखाई है मेरे साथ बिल्कुल वैसा हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं सपने में भी कि मेरी कहानी पे भी फिल्म बन सकती है, या मैं भी किसी फिल्म का हिस्सा हो सकता हूँ।
तो उसको फिर बहुत वो जो हमारे टैग ने सब लोगों ने उनको हग किया और उनको समहाउ शांत किया और उनको कहा कि क्यों नहीं हो सकते आप भी फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, आपकी कहानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम लोग एक जगह स्क्रीनिंग कर रहे थे जलंधर के पास, तो कुछ लेडीज हमारे पास आई और जो इंसिडेंट था जिसमें एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिकल फैसिलिटीज, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वी वर नॉट एबल टू सेव आवर चाइल्ड। तो ये हमारी कहानी है। और फिर एक जगह पे मतलब मैं कहीं पीछे था, तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, दलित फीमेल्स आई, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनाई किसने है, वुड लाइक टू मीट दैट गाय, क्योंकि हमारी बात हुई नहीं है कभी। तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस जो फिल्म देखने के बाद उनको मिलते थे। और एक एक कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हम लोग मास कम्युनिकेशन कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, बेसिकली किसी कॉलेज के अंदर स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो एक पेरिस से कोई एक आए हुए थे, कोई फ्रेंच पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बोलना चाहता हूँ फिल्म के बारे में। तो हम लोग बहुत हैरान थे कि यार ये फिल्म सबटाइटल थे, लेकिन वो फ्रेंच हैं, वो इंग्लिश भी नहीं है, तो उनको क्या समझ आई होगी। लेकिन वो आई थिंक अर्मेनिया मूल के थे, तो उन्होंने खुद उस तरह का झेला है, इवन डिस्क्रिमिनेशन पेरिस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार आई कैन रिलेट विद दिस फिल्म। इनफैक्ट हमारे फादर हमको यही कहते थे कि सब सब इस जो डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारे साथ हो रहा है, इससे बाहर आने का एक ही तरीका है, आप एजुकेशन लो, आप पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई कैन टोटली रिलेट विद दिस फिल्म। और उसके बाद एक स्क्रीनिंग इसकी नागपुर में हुई थी, और वहां पे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो वहां पे भी लोगों ने इसके साथ रिलेट किया, जबकि ये लैंग्वेज में दूसरी फिल्म है। तो हमको वहाँ एक दो बहुत नोन मराठी डायरेक्टर भी आए थे, इवन उनके हमको बाद में फिलर्स आए कि वी रियली लाइक यू फिल्म। तो मुझे ये भी लगता है कि समटाइम चीजें यूनिवर्सल होती हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में वो बात करते हो, वो यूनिवर्सल होती हैं। अब मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा कि ये फिल्म मतलब फाइनली जो सीड कैसे आया मेरे दिमाग में। मैं हमारे राइटर हैं भगवंत रसूलपुरी पंजाब के, वो बेसिकली दलित लिटरेचर पे ज्यादा काम करते हैं और उनका एक मैगजीन भी है कहानी धारा के नाम से। उन्होंने इंडिया की कुछ दलित स्टोरीज को पंजाबी में ट्रांसलेट किया था, और उसमें एक स्टोरी थी जिसमें बेसिकली ये था कि एक जो मरे हुए जानवरों की स्किन बेचने का काम करते हैं, ट्रेडिशनल काम है, एक किसी गांव में एक फैमिली वो काम करती थी, और बड़े दिनों के बाद उनको स्किन मिली थी सेल करने के लिए, कोई पशु की डेथ हुई थी, और वो गांव में सेल नहीं करते थे, वो टाउन में जाके सेल करते थे। तो वो उसको टाउन ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे थे और पैसे भी देना चाह रहे थे ताकि वो वहां जाके उसको बेच सकें, लेकिन पूरे दिन में किसी ने उनकी वो जो स्किन थी वो ट्रांसपोर्ट करने में उनकी हेल्प नहीं की, और वो एक तरह की वेस्ट हो गई। तो ये सीड था। मुझे लगा कि यार अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को बहुत जरूरत हो पैसे की और इस तरह की सिचुएशन में कोई उसकी हेल्प ही ना करे, तो क्या हो सकता है। एक ये बात थी, और एक दूसरी बात और मेरे मन में थी, मेरे सबकॉन्शियस में थी। बहुत साल पहले जब मैं एक बस में ट्रेवल कर रहा था, तो सर्दियों का टाइम था पंजाब में, और कुछ कश्मीरी लोग हमारे पंजाब में आते हैं जो लकड़ी काटने का काम करते हैं जब कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है। तो उन लोगों ने बस वालों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमको भी आप लेके चलो, जो भी टिकट है हम लोग देंगे, हमको अगले शहर जाना है। तो उन लोगों को बस कंडक्टर ने बस में चढ़ाया नहीं। तो हम लोग बहुत हर्ट हुए, हमको लगा कि यार ये क्या, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हुई यार। वो आपको पैसा जो आपका किराया बनता है वो आपको देने को तैयार नहीं, लेकिन आप उनको क्यों बस में नहीं लेके जाते। तो इस तरह की चीजें कहीं सबकॉन्शियस में थी। और फिर एक रियल इंसिडेंट हुआ था पंजाब में कि एक वाइट वॉश करने वाला आदमी था, वो अपने बेटे को सेव नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास बच्चे की इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने सिनेमे में होप जरूर रखना चाहता हूँ, लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ
उनको डिप्रेशन में नहीं डालना चाहता। तो मैं एक ऐसा भी कुछ ढूंढ रहा था जहां दलित कम्युनिटी ने स्ट्रगल करके कुछ हासिल किया हो। तो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, जिन्होंने बेसिकली स्ट्रगल करके बहुत सारे गाँव में कोऑपरेटिव सक्सेसफुल खेती की है। तो इस तरह की सारी चीजें थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने शुरू में बात की, वो टिपिकल जो फिल्म का आर्क होता है उस तरह का ना भी हो, लेकिन जो ऑर्गेनिकली मेरी चीज दिमाग में आता गया वैसे वैसे हम लोग इसकी स्टोरी को डेवलप करते चले। लेकिन एक दो कुछ और ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जो गांव के लोगों की नहीं है, जो शहर के लोगों की हैं। एक बहुत बड़ी स्कॉलर है यूके की, उन्होंने मुझे पूछा कि राजीव मुझे एक चीज बताओ, वो जो लड़की जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी क्या कास्ट है? तो मैंने कहा कि ये क्यों आप पूछना चाह रहे हैं? लेकिन उन्होंने पूछा मुझसे। मतलब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस भी हैं। समटाइम आप में भी, वो एक कैरेक्टर था जिसकी कास्ट को मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा था, मेरे लिए वो ह्यूमन है, लेकिन मेरे से ऐसा सवाल पूछा गया कि वो किस कास्ट की हैं। तो ये इस तरह अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशंस है। और फिर कुछ लोगों ने इस फिल्म को जो एनिमल राइट्स हैं उसके साथ भी देखने की कोशिश की। और एक आपको और इंटरेस्टिंग मैं अपनी लास्ट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, या हमारी जो डिस्कशन हुई, जब ये मैंने फिल्म जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है उसको सुनाई, तो उसने कहा कि यार अजीब, मुझे एक चीज कन्विंस नहीं कर रही। मैंने कहा बोलो क्या? कहता कि मतलब अगर बच्चा है उसको बचाना है, और एक कट्टा हम पंजाबी में बोलते हैं, जो भैंस का बच्चा है उसको बचाना है, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर आवर चाइल्ड। मैंने कहा लेकिन ये फिल्म में ऐसा ही है भाई, ठीक है। और उसके बाद मतलब कभी किसी ने वो सवाल नहीं उनको, उनको लगा कि नहीं उस सिचुएशन में जो उसने किया दैट वाज राइट। और ये देखिए आयरनी है उस बंदे की, उसका जो धंधा है वो जानवर मरते हैं तब चलता है, लेकिन लोग सेंसिटिव होते हैं लाइफ में और लोग डिसीजन लेते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं। मुझे लगा कि मुझे पता नहीं, मतलब मैं अपने आप को क्लियर कर पाया हूँ कि नहीं, क्योंकि इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने उसमें से कुछ आपके साथ शेयर की। Yeah, thank you very much, Rajiv Kumar, for your intervention, especially the fact that you spoke so much about the reception of your film, because generally we tend to, discuss a film, but ignore the reception of the film. So I'm very happy that you are present today, and you have told us about how you actually carried your film to the different villages, and you wanted to show it, as you said, to the people about whom your film is. So I found that all very interesting. It was, it reminded me of the whole third cinema movement, where films were actually the reception of the films was of great concern for the makers of third cinema. So thank you very much for that. Any comments, questions? Jayanto, you had, I think, unmuted. Yes. Yeah, please go ahead. But almost everything has been said. But the only thing that I would like to add to that is I would repeat some of the things which have already been mentioned. राजीव जी, आप बहुत बढ़िया फिल्में बनाते हैं, हाँ? ये बात मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता था। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपकी है, मुझे ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट पे फिल्में बनी हैं, लेकिन जिनके लिए बनी हैं वो नहीं देख पाए हैं।
तो आपने जो कोशिश की कि 600 से ऊपर गांव में जाके जिनकी जिंदगी पे बेस्ड ये फिल्म बनी है उनको आपने दिखाया, उनके रिएक्शन आपने प्राप्त किए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में ही एक एक काफी वाइब्रेंट फिल्म कल्चर है। तो यहाँ फिल्में आई, सैराट, फैंड्री जैसे मराठी में नागराज मंजुले की, लेकिन जी मैं देखता रहा कि उनके इर्द गिर्द इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बहुत हुई, लेकिन जिनके लाइफ पे वो फिल्म बनी है मुझे नहीं लगा कि उनके पास तक फिल्म पहुंच पाई है। तो ये जो आपने कर दिखाया ये बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी चीज मुझे लगा कि ये बात पहले भी कही जा चुकी है, वी टेक फॉर ग्रांटेड, वी अज्यूम a certain egalitarianism, you know, with Sikhism and also with life in Punjab की दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में वहाँ इंसान और इंसान के बीच इक्वालिटी थोड़ा ज्यादा है। सो दैट वाज नाइव, वो भी शायद मेरा बचकानापन था जो कि मैं इतने दिनों तक नहीं जान पाया, अब जान पाया। सो दैट वाज अनदर फैक्टर। और दूसरी चीज थी कि मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी भी मेजर कॉम्पेंडियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पे पंजाबी फिल्मों के बारे में कोई चैप्टर हो या कुछ लिखा हुआ मैंने देखा नहीं है। चाहे वो आशीष राज्याध्यक्ष की पिक्चर, पॉल विलमन की किताब, माधव प्रसाद की, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल, बट एक चीज ये है कि वो किताबें करीब 1999-2000 के इर्द गिर्द आई है, और आपकी और गुरविंदर सिंह जी की फिल्में जो है 215 की शायद बाद की बनी हुई है, 215-216। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसके पहले 2000 तक जो सीरियस पंजाबी फिल्म में, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं बनी है, उसके बारे में क्यों कोई नहीं लिखता? क्यों हमें नहीं पता था? जैसे हम लोगों को द कास्ट सिचुएशन, द डिवाइसिवनेस ऑफ पंजाबी पॉलिटिक्स नहीं मालूम रहता आम हिंदुस्तानी को, वैसे ही पंजाबी फिल्मों की खासियत के बारे में हमें क्यों नहीं मालूम पड़ता? इसके बारे में लोग शायद उतना नहीं लिखते जितना उन्हें लिखना चाहिए। आप इस दिशा में भी कुछ कदम जरूर बढ़ाइए। और एक चीज, तीसरी बात, मेरी आखिरी बात ये है कि आई विल गो बैक टू मार्शल मैक्लूहन, द मीडियम इज द मैसेज, वहां पे अगर आप हायरार्की को एस्टैब्लिश करना चाहें तो मेरे ख्याल से वो मीडियम थोड़ा ऊपर आता है, कि द मीडियम डिसाइड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट कि मैसेज क्या है। लेकिन आपने मेरे ख्याल से, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर फिल्म मेकिंग, फार फ्रॉम दैट, आपने द मेकिंग ऑफ द फिल्म को बहुत सिंपल रखा, वहां कोई लफाजिया आपने दिखाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आपकी फिल्मों में जहां तक मुझे लगा मैसेज वाज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? आप इस पे कुछ टिप्पणी जरूर कीजिए। थैंक यू, आई लव द फिल्म। मैं बिल्कुल जो आपने बातें कही हैं उसमें सिर्फ एक दो बातों पे मैं करेक्ट करूंगा, क्योंकि बाकियों से तो मैं सहमत हूँ। देखिए, जो सिखिज्म में इक्वालिटी की बात है, फिलोसफिकली 100% देयर, वो बिल्कुल है। सिखिज्म बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, और वहां कास्ट सिस्टम की कोई जगह नहीं है, जो ओरिजिनल फिलोसफी है सिखिज्म की। लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आता है, प्रॉब्लम वहां पे होती है। एक बात तो ये है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अमृत छकाया था तो उन्होंने 5 डिफरेंट कास्ट के लोगों को बुला के एक जगह पे उनको रिचुअल्स किए थे, और उनको पानी पिला के उनको बोला था आप सब इक्वल हो, कोई कास्ट नहीं है, कोई नथिंग। जो मेल हैं वो सिंह हैं, और जो फीमेल्स हैं वो कौर्स हैं। तो फिलोसफिकली सिखिज्म में कास्टिज्म की बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस में आते आते हो सकता है गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की साधना की थी तो कुछ साल तक वो बिल्कुल कास्टलेस सोसाइटी चली होगी डेफिनेटली।
लेकिन धीरे 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 फिर से उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो एक तो ये बात मैं जरूर क्लियर करना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये कि सर जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की थी तो मैं फिल्म को बहुत ही क्राफ्ट की नजर से देखता था कि एस्थेटिक तो मुझे शायद नहीं उसके बारे में ज्यादा पता था, लेकिन टेक्निकली उसको बहुत ही मैं देखता था क्राफ्ट के तौर पे कि फिल्म में ये होना चाहिए, ये क्रेन शॉट होना चाहिए, ये क्लोजअप होना चाहिए, ये लॉन्ग शॉट होना चाहिए, ये सिनेमैटिक होना चाहिए। लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ वो इकोनॉमिकल वायबल भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों के लिए मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ अभी वो फाइनेंशियल उतने वेल भी में नहीं है, वो हमारी फिल्मों में पैसा हमको वापस नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए सिनेमा बनना बहुत जरूरी है। तो सिनेमे की डिपेंडेंसी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, उसको कम से कम करने के लिए मैंने अपना सिनेमा सिंपल कर लिया। तो जो क्राफ्ट वाला पार्ट है, डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, उसको मैंने सेकेंडरी कर दिया। मेरे लिए जो कम्युनिकेशन है मेरी दर्शक के साथ, क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि जो एनएफडीसी की फिल्में हैं जिनको गवर्नमेंट 2-2, 3-3 करोड़ रुपया देती है, वो लिटरली जिन लोगों के बारे में होती हैं वो लोग कहते हैं हमको फिल्म समझ में नहीं आई, हमको ये फिल्म कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई। तो मैं उस सबसे बचना चाह रहा था। मैं सर कोई अपनी फिल्म के बारे में जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे को पता है, वो जो भी वर्ल्ड सिनेमा मैंने देखा है, वो सम टाइम क्या होता है आप अपना इंटेलेक्चुअल इंटीमिडेट करना शुरू कर देते हैं दर्शकों को, वो मैं कॉन्शियसली नहीं करना चाह रहा था। तो बिल्कुल मैंने कॉन्शियसली अपने सिनेमा को सिंपल रखा, मतलब सिंपल मैं करता चला गया। मेरी अगर पहली फिल्म देखेंगे, दूसरी फिल्म देखेंगे, वो थोड़ी टेक्निकली उसमें मूवमेंट है ज्यादा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए हैं मैंने, लेकिन फिर धीरे 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 मैं उसको सिंपल करता चला गया। तो ये मेरी जर्नी है सर। I think Jayanto, this kind of an argument had comes up constantly in the case of Dalit writing as well. This aesthetic and the content of the writing. I mean, as you were speaking, I was just remembering that parallel. Any other comments, questions? Yes, Nikhila, please go ahead. Yeah, first of all, Rajiv ji, a very warm welcome to TFO. We've been in conversation, but it's wonderful that you agreed and also shared a copy of your film with Talking Films online. And thanks for all that you told us about the film. I was just thinking of a couple of things, in response to Ruchika, you pointed out, there are films that are made about Dalit subjects, but as you said, showing Dalits what it means to be represented on screen as Dalits, not just treating them as objects, but also making them part of the process, as you said. That was very striking to me. I'm also just kind of thinking aloud about this issue, the point that Ruchika earlier raised and Jayanto just said in passing. And that is we have been in the past few days after the huge success of this Kannada film called Kantara, we have been thinking about this issue of caste. Many people are dissatisfied with the film because it does not bring in caste. Or it brings in a certain kind of representation of caste, which is almost invisibilized. So here is a film that is Chum. Here is a film that brings in caste in a certain
kind of way. I mean, represents caste in a certain kind of way. And then we think that the film is kind of like propaganda, pedagogic. So I was just thinking, I mean, is there a way in which representation of caste, Rajiv ji, I mean, can it be anything but what others find it as propaganda? I mean, if this is how caste works in society, it's fine that it seems like propaganda, because that is the way in which we can understand the workings of caste and see it in a stark fashion, not kind of hidden in the garb of class, or hidden through the magnificence of spectacle or something like that. So this is I mean, I'm just thinking aloud. If Rajiv ji has thoughts on this, it's fine. But anyone else who can also reflect upon this question of what is it that we expect when we say we want a film to talk about caste, and when it does, we say it seems like propaganda. So I was just thinking aloud about this question. Thank you very much, Rajiv ji, for also making available the film. We have not paid 10 rupees or 20 rupees, but you have allowed us to watch and discuss this film. Thank you very much. मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन अपनी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा निखिला मैम, कि जब सायराट तो आपने देखी होगी, सबने देखी है, वो पंजाबी में जब बनती है तो उसमें कास्ट का जो इशू वो गायब कर दिया जाता है। वो कैन यू बिलीव इट? जो उसकी सोल है वो खत्म कर दी जाती है फिल्म से। हिंदी में भी ऐसा हुआ जी। चन्ना मेरे के नाम से बनी, एंड मैंने देखा उसमें गायब है, मेन मुद्दा ही गायब है। और दूसरा ये है कि जैसे गीता मैम ने पहले बात की है, मैं थर्ड सिनेमा को अच्छे से, क्योंकि मैं ना ये देखना चाह रहा था निखिला जी कि जिस तरह का सिनेमा मैं बनाना चाहता हूँ, क्या दुनिया में या इंडिया में वैसा सिनेमा पहले कभी बना है? तो थर्ड सिनेमा को मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है और मैं बहुत कन्विंस हूँ मेरा जो सिनेमा है वो थर्ड सिनेमा के आसपास है। वो ना तो हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस है, ना ही जो टिपिकल यूरोप का आर्ट हाउस सिनेमा है, ऑदर का जो सिनेमा वैसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको अपनी खुद की एस्थेटिक बनानी पड़ेगी। जो ऑलरेडी एस्थेटिक लोगों ने बनाई है, जरूरी नहीं हमको फिट हो और हम उनमें फिट हो। तो प्रोपेगेंडा अगर लगता है, इट्स फाइन विद मी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी वो लोग हैं जिन लोगों तक आर्ट फॉर्म्स पहुंची नहीं है या जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरे दर्शक वही लोग हैं, मैं उनके लिए सिनेमा बनाता हूँ और मेरे को लगता है उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं देखिए आर्ट हाउस सिनेमा का मैं मतलब उस तरह से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं खुद जाता हूँ, मुझे आर्ट फिल्म जो टिपिकल आर्ट हाउस सिनेमा पसंद आता है, लेकिन अगर वो एक कॉमन आदमी को वो बात समझ में नहीं आ रही तो फिर वो मैं वैसी फिल्म बनाऊंगा, मैं देख लूंगा, अप्रिशिएट कर लूंगा, लेकिन खुद नहीं बनाऊंगा कभी भी। क्योंकि मैं जिन लोगों के लिए फिल्म बनाता हूँ, जो मेरे मतलब बेसिक दर्शक हैं, उनको मेरी बात एटलीस्ट समझ तो आनी चाहिए। तो वो एक चीज है। और दूसरा ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह के सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि इसमें एस्थेटिक पे उस तरह से काम नहीं हुआ है या इसमें प्रोपेगेंडा है, तो हम इसमें कोई शर्म नहीं है हमको मानने की कि हम ऐसा सिनेमा बनाते रहेंगे। हमारा खुद का एस्थेटिक है। जो लोग थर्ड सिनेमा के बारे में जानते हैं उनको पता है कि थर्ड सिनेमा का अपना एस्थेटिक था और उनको जो इम्परफेक्ट सिनेमा है वो ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी उसके पीछे फिलॉसफी है। तो मैं एक तरह से कह लीजिए कि थर्ड सिनेमा के जोन में मैं आता हूं। और इंडिया में मुझे जब मैंने काफी सारी स्टडी की क्या जिस तरह का सिनेमा मैं बनाना चाहता हूँ, लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ, या कुछ और लोगों ने भी ऐसा किया है, तो जॉन अब्राहम जो केरला के फिल्म मेकर रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इस तरह का
मतलब नॉट मेरी तरह का सिनेमा, बट इस तरह की कोशिशें की हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह की इंस्पिरेशन है अगर इंडिया की बात की जाए। और वर्ल्ड सिनेमा की बात की जाए तो थर्ड सिनेमा डेफिनेटली हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और मैं गुरशन सिंह जिनके साथ थिएटर करता था, उनका जो थिएटर था वो थर्ड सिनेमा के आसपास का थिएटर था। तो मेरे लिए एक बेनिफिट ये भी है कि मैं ऑलरेडी उस तरह के काम के बारे में अवेयर था किसी दूसरी आर्ट फॉर्म, मतलब थिएटर के जरिए, सिनेमा के जरिए नहीं। तो सिनेमा में तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टेम्पलेट तो है नहीं, तो हम लोग ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं, अब जैसा भी हो रहा है वो। Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, I just have one point to Yeah, add. please go I on. actually raised the point of propaganda film. So I think that, of course, sir, there's nothing to be ashamed of when we make propaganda art, not just cinema, propaganda art at large. The only thing that defines something as propaganda versus an art for art's sake is that it has a commitment to it, that it wants to fulfill. The aesthetic question, however, I feel comes in about with the predictability factor. You know, like how I said in my presentation, that the film would have been a classic propaganda film if the narrative had gone a certain way, which, you know, you expect a tragedy to happen. You have an innocent protagonist, the innocence is established in the first five sequences, and then the tragedy follows, and the film ends, or the film ends on a hopeful note, which is just otherworldly. You know, it doesn't happen in reality. So I think catching the aesthetic nerve is a lot about unpredictability of the narrative, both in other art forms and in cinema, and just about how closely you're able to capture the complexity. Like, for example, I found it very interesting that the younger brother, I'm forgetting the name, the younger brother, there's one scene which showcases him looking at, you know, nude photographs on his friend's phone who's from the city, and that establishes that, you know, that's one of the reasons he wants to migrate to the city. But in the following sequences, we also know that he wants to migrate because he wants a good job, and in the end he does. We never know why he did it, or maybe it was multiple reasons, or was it because he lost his son. So that catching the complexity of the nerve, that, you know, there's not just this one innocent person who's being oppressed, or that there's just this one terrible person who's the oppressor. This catching of the complexity and making an unpredictable narrative, I think that's where propaganda cinema gets its aesthetic from. And that's true for third cinema at large also. Like, we do watch third cinema films, not just because we are, I don't know, emotionally pulled that you have to watch something that's, you know, about the ills of the society. It's also interesting to watch it. So just I rest my case. रुचिका, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब वो छोटा भाई गांव छोड़ के शहर जा रहा होता है, तो मैंने कॉन्शियसली एक बात की है उस सीन में दोनों फीमेल मिलती हैं और मेल जो है वो बिल्कुल डिस्टेंस पे हैं। तो वो भी मेरे दिमाग में कॉन्शियसली रहता था कि फीमेल, मतलब जो इस तरह की सिचुएशन होती है, फीमेल को ज्यादा सफर करना पड़ता है, उनकी उनकी इच्छा भी पूछी नहीं जाती। हो सकता है छोटे भाई की वाइफ शहर ना जाना चाहती, तो मतलब अगर एस्थेटिक किसको कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिना सोचे समझे फिल्म नहीं बनाई, लेकिन No, मतलब of course, I get it. I was just मैं saying, वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगा। yes, sure. हाँ, लेकिन मेरे को ये था कि मेरी फिल्म लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जो इस तरह के सब्जेक्ट मैटर पे पहले फिल्में आई हैं, मैंने जब लोगों से बात की है, तो वो उन फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स ने उनको बहुत सराहा है, लेकिन वो फिल्में जिन लोगों के बारे में है, उनको वो फिल्में समझ में नहीं आई है। मेरी ये भी एक प्रॉब्लम। No, sir, I totally get it. I was just talking about propaganda cinema at large, that how it retains its aesthetic senses despite having a socially committed agenda while the film is being made. So it was देखिए प्रोपेगेंडा हर जगह पे है मैम। अब मैं किसी फिल्म का it's नाम, nothing wrong. Propaganda is बिल्कुल, और हम लोग हम लोग तो प्राउडली प्रो पीपल प्रोपेगेंडा करते हैं अपना सिनेमा में, और करते रहेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो हिटलर के टाइम पे भी होता था सिनेमा में, अभी भी हो रहा है। अभी भी मैं कश्मीर जाके आया हूँ,
एक डॉक्यूमेंट्री शूट करके, वहां वैसा कुछ है भी नहीं जिस तरह का सिनेमा में दिखाया जाता है। तो प्रोपेगेंडा इज एवरी, मतलब हर किसी को हक है अपनी बात कहने Definitely, का। definitely. Yes. जी जी। It was great talking to you, sir. सेम हियर, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरे बड़ी तरह के इंटरेस्ट है, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो एकेडमिक में भी मेरा इंटरेस्ट है कि सिनेमा को किस तरह से लोग देखते हैं, किस तरह से उसके बारे में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो फिल्म बनाने के साथ साथ मैं इक्वली इंटरेस्ट लेता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा आप सबसे बात करके, क्योंकि दर्शकों के साथ बात करना या फेलो क्रू के साथ, एक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ बात करना अलग बात है, लेकिन सिनेमा को जो स्टडी करते हैं उनके साथ बात करना बिल्कुल अलग बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और इनफैक्ट मैं आप सबका बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी बात आपके साथ शेयर कर सकूं। Thank you, Rajiv. Any other comments, questions? Yes, Tarkeshwar, please go ahead. Thank you, Ravindraji, and thank you, Ruchika. And I would like to pick up some of the issues that have come up earlier, mainly about the representation of caste and the complexity that the narrative portrays about the caste. It is, though you might call it as propaganda, but everything is a propaganda. There's nothing outside of the propaganda. So it's only a matter of perspective, what you call as propaganda, what you don't call as propaganda. Otherwise, for me, every film is a propaganda, whether it's mainstream or aesthetic or even new wave, that apart. Here I wanted to focus on two incidents where there is a pravachan. And I think the pravachan is given by quote unquote a Hindu priest, or I don't know how to, saint or whatever you want to call it. One about the Rahu Ketu. And then he comes back and says about Rahu. So there it seems he is moving towards the rational view of the world, which actually is necessary for a particular kind of Dalit movement that we saw in the last 40, 50 years in India. And this pregnant lady coming back to Sasural from the Maike is also because somebody told her that they have to have there. So these two incidents, not directly related to, I think, Sikhism. So there is, the caste seems to be operating between what you said in ideal Sikhism, and there is another prevalent pre-Sikh culture, and later on there seems to be a kind of blending of this pre-Sikh and then the Sikh culture in the modern times. So that's where I think the caste acquires its complexity in this particular Punjabi context. So I just wanted to mention these two things here. Thank you for the film, and thanks everyone. Thank you, Tarkeshwar. Would you like to respond, Rajiv? मैं बस सर की बात के रिस्पॉन्स में यही कहना चाहता हूँ कि सर्टेन चीजें जो मैंने बचपन से देखी हैं या सुनी हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हिंदू रिलीजन से आते थे। मैं अपने आप को रिलीजियस आदमी नहीं मानता हूँ, और पर एट द सेम टाइम हर किसी को रिलीजन अपने हिसाब से फॉलो करने का हक है। तो ना मेरे दिमाग में ये जो मिथ थी, जो राहु केतु की मिथ थी, मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती थी कि अगर दो तरह के लोग मेहनत करके किसी चीज को अचीव करते हैं तो उसमें दोनों का राइट होना चाहिए। कॉमन सेंस ये बात करती है। तो उसमें वो जो अचीव किया गया है उस पे एक ही तरह के लोगों का हक कैसे हो सकता है, वो चाहे फिर वो कोई भी हो। तो वो मुझे डिस्टर्ब करती थी, तो मैं उसको कंडेम करना चाहता था, या उसका एक अल्टरनेटिव वे, मतलब लोग उसको कैसे
काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैथोलॉजी में कहा गया है हम उसको एज इट इज मानते चले जाएं, हमको उसको काउंटर भी करना चाहिए। तो मैंने वो कॉन्शियसली उसको काउंटर करने की कोशिश की है, मतलब मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ। Thank you. Any other questions, comments? Geeta, if I may. Yeah, sure. Please go So ahead. if anyone else has, it's okay. No, please go ahead, Nandini. अच्छा, राजीव जी, मैं पूछना चाहती हूँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप गुरशरण जी जैसे, हम भी मानते हैं कि आइकॉनिक थिएटर, पीपल्स थिएटर में अगर कुछ गैलरी हो तो उसमें बहुत ही शामिल है, तो आपको लगता है कि अगर आप ऐसे थिएटर में जो पॉलिटिकल, राजनीतिक, एक सामाजिक एक थिएटर के साथ आपने जुड़े अगर नहीं होते तो आप ऐसे फिल्म बना सकते? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाता, क्योंकि मेरा आर्ट को देखने का जो नजरिया है वो उसी थिएटर करने के दौरान ही मैं अवेयर आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं उनके बचपन से मेरे बिलीव भी वैसे थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, जिसका मुझे बहुत शौक था, तो मैंने उन चीजों को फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आने शुरू किए। लेकिन जो क्लैरिटी बनी वो डेफिनेटली, अगर मैं गुरशरण सिंह जी के साथ थिएटर नहीं करता तो मैं इस तरह का सिनेमा नहीं बनाता। हो सकता है मैं थोड़ी कोई सोशल फिल्में बनाता, नॉर्मल इमोशनल फिल्में, या उस तरह का काम करता, हो सकता है टिपिकल कमर्शियल सिनेमा ना बनाता, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ मैं बिल्कुल फिल्में नहीं बना सकता था। बकायदा गुरशरण सिंह जी के साथ जो हमने काम किया है और उनकी जो सीख है उसी वजह से, और दूसरा उससे हमको कॉन्फिडेंस भी मिला है कि अगर आप प्रो पीपल कोई भी आर्ट फॉर्म करते हो तो उसको देखने वाले लोग हैं और उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो कमर्शियली, मतलब चाहे वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, मतलब उनके पास दौलत ना हो आपको देने के लिए, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपकी आर्ट को सपोर्ट करेंगे और उनको उस तरह के आर्ट की जरूरत है। तो डेफिनेटली आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि अगर मैं गुरशरण सिंह जी के साथ काम नहीं करता तो डेफिनेटली मैं इस तरह का सिनेमा नहीं बना सकता था। Any और more? इसी संदर्भ में और एक कुछ प्रश्न है मेरी, कि इसको जैसे आप ये प्रोपेगेंडा फिल्म, जो प्रोपेगेंडा, ये शब्द, जो ये टर्म जो सुनाई दे रहा है, तो डोंट यू थिंक दैट this is a very problematic way to see socially oriented films like yours, to see it as propaganda, I mean in quotes, propaganda films? नंदी में मुझे क्या लगता है कि मैंने पहले जैसे अपनी बात में क्लियर किया है कि मेरे जो बेसिक दर्शक हैं उनको नहीं पता किसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं, किसको प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं कहते। उनको लगता है ये फिल्म हमारे बारे में है, हमारी बात कर रही है और हम इससे इंस्पायर हो सकते हैं, हमको फाइट करना चाहिए, जैसे जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी ने किया, क्योंकि अगर सब लोग मिलकर फाइट करते हैं तो कुछ ना कुछ हल हो जाता है। तो मेरी फिल्म वैसे रिसीव हो रही है उस स्पेस में, तो वो ही मेरे मेन दर्शक हैं जिनको मैं सीरियसली लेता हूँ। बाकी लोगों को मैं सुनता हूँ और उसके ऊपर अच्छे से सोचता हूँ, लेकिन वो, और दूसरा ये है कि मेरी भी ट्रेनिंग है मैम, तो मुझे पता है कि कौन लोग मेरी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहेंगे, तो हम ओके विद इट, कोई इशू नहीं है उसमें। और दूसरा ये भी है कि प्रोपेगेंडा फिल्म, जैसे रुचिका ने बोला या मैंने पहले बोला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैम, जब मैं गुरशरण सिंह जी के साथ काम कर रहा था उसके बाद मैंने एमए इंडियन थिएटर में किया, तो वहां पे मेरे एक और बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर थे जिनका नाम था नीलम मान सिंह चौधरी। तो नीलम मान सिंह चौधरी भी पंजाबी थिएटर करते थे, गुरशरण सिंह भी पंजाबी थिएटर करते थे। मैं गुरशरण सिंह जी के साथ थिएटर करता था डिपार्टमेंट में आने से पहले। डिपार्टमेंट में आने के बाद मैंने नीलम मान सिंह चौधरी उनका पंजाब का थिएटर देखा, तो वो, मतलब देखिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अमृतसर की एक एलीट फैमिली से आती थी और उन्होंने पंजाब के कल्चर को यूज करके थिएटर किया,
बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो थिएटर फेस्टिवल होते हैं उनके प्ले गए, लेकिन आई डोंट नो कि कभी उन्होंने पंजाब के किसी गांव में जाके कभी प्ले किया हो। वो मेरे टीचर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरे को बहुत क्लैरिटी थी, मुझे पता था कि नीलम मैम के प्ले को पसंद करने वाले अलग तरह के लोग हैं, और जब वो गुरशन सिंह जी के प्ले को देखेंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो विच इज फाइन, कोई बात नहीं, उससे मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी सारी क्लैरिटी है इन चीजों को। और तीसरा प्रश्न अगर मैं रख सकती हूँ तो जी बिल्कुल आप बिल्कुल। बोल रहे हैं कि आपके जो आइडियल दशक जो है वो दलित समाज के है, बहुजन समाज के है, हाँ, पिछड़े हुए समाज के है, मैं उनको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूँ, वर्किंग क्लास, चलिए कह वर्किंग क्लास, ओके। तो फाइन, आई मीन दैट्स ओके, बट what about those who are not, like university students perhaps, who are upper caste students, or don't you feel कि ऐसे film should also be discussed in large wider groups, and अगर आपने ऐसे किए हो तो अगर आपके एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, ये फिल्म मैंने देखी, मैंने अपने जो प्राइमरी दर्शकों के बारे में बात की है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये फिल्म दिखाई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखाई गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में ये फिल्म दिखाई गई है। इसके अलावा हम लोगों ने इंटरनेशनली भी इसकी स्क्रीनिंग की है, टोरंटो में इसकी स्क्रीनिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में स्क्रीनिंग की है, वैंकूवर में इसकी स्क्रीनिंग की है। तो इसको बहुत, मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोगों में दिखाया गया है। मैं ये कह रहा था कि मेरा कंसर्न वो लोग हैं, बाकी लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म नहीं दिखाना चाहता, उनको भी दिखाया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्क्रीनिंग की थी इसकी, तो बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे, जैसे जो सर कह रहे थे, उनको ये फिल्म देख के लगा अच्छा ऐसा है पंजाब, हमने तो नहीं सोचा था, हम तो पंजाब को देखते हैं जस चोपड़ा की सिनेमा के हिसाब से, तो ऐसा भी होता है पंजाब में, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। तो डेफिनेटली मैं, बिल्कुल आपका वाजिब कंसर्न है, और मैंने इसको एड्रेस किया है। डेफिनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में बार बार हुई है। मतलब बहुत सारे लोग, जैसे एक जनरेशन पढ़ के चली गई, तो फिर दूसरे लोग आए, तो उन्होंने इस फिल्म को देखा। एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हमको लगा कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमने 500-600 गांव में इस फिल्म को दिखाया है, और काफी सारे लोगों ने, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको हेल्प किया है, जिनको हमने फिल्म दे दी, तो वो अपने लेवल पे इसको दिखाते रहते हैं गाँव में। उसके बाद हमने एक, हमारा यहाँ लोकल OTT प्लेटफॉर्म है पंजाबी का, मेन स्ट्रीम कमर्शियल, जब हमने उनको कहा कि देखो भाई, हम ये फिल्म जितने लोगों तक पहुंचा सकते थे पहुंचा दी, और भी बचा रहे, लेकिन हम इसको एज एन फिल्म भी देखना चाहते हैं, कि आउट ऑफ जो हमारा एक दर्शक वर्ग है जो हमारे लिए अहम है, उसके अलावा एक जो नॉर्मल दर्शक वर्ग है वो इस फिल्म को कैसे रिएक्ट करता है, तो आप इसको अपने प्लेटफॉर्म पे रखिए, और अगर आपको पसंद आती है फिल्म, हमको पता चलना चाहिए कि बाकी लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे भी मतलब कम से कम 10 से 15 हजार लोग, जो हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा देखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखा है। दैट्स मीन कि दर्शक वहां पे भी हैं। मे बी हम लोग ऐसी फिल्में ब्रिज का भी काम कर सकती हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि इस तरह का सिनेमा बना नहीं है। तो जो जिनके बारे में है वो डेफिनेटली वो तो कंसर्न है, पर मुझे लगता है बाकी के लोग भी इस तरह का सिनेमा देखना चाहेंगे, अगर हम उन तक लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन जो ट्रेडिशनल एग्जीबिशन का मतलब वे है, डेफिनेटली वहां पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अल्टरनेटिव वेज जरूर ढूंढने चाहिए इस फिल्म को अपने प्राइमरी ऑडियंस के अलावा बाकी लोगों तक भी पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Any more comments? Questions? नंदिनी जी, मैं सिर्फ एक चीज मैं भूल गया, वो मैं थोड़ा, मुझे लगता है वो शेयर करनी चाहिए। एक लड़के ने इसके ऊपर एमफिल किया है इस फिल्म के ऊपर, और स्पेक्टेटर थ्योरी को उसने अप्लाई करके किया है कि इस फिल्म को दर्शकों ने रिसीव कैसे किया है। तो जी हाँ, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, थैंक यू। जी।
if no one has a Yeah. question, can I? Yeah, please come in. Yeah. Yeah. So, Rajiv ji, ये digital era of filmmaking में we say that the conditions of production as well as the conditions of exhibition have changed. मतलब internet अभी accessibility and different modes of distribution, mobile के ऊपर देख सकते हैं, all that. For a film like yours, how important is this factor? That is, what is it that digital cinema has enabled for for a filmmaker like you? Can you talk a little bit about that? Because new cinema की बात जब आती है, most of the time it seems like when we talk about the audience. It is like as if we are looking at an audience that is going beyond the linguistic region. So इधर आप बोल रहे हैं तो it's not about going beyond the linguistic region to a diaspora audience. It is kind of reaching to those segments, pockets, which may never get to see the cinema in a theater or an OTT platform. तो इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं. जी बिल्कुल. देखिए, जब मैंने बहुत साल पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे फिल्म मेकिंग सीखनी शुरू की थी, तब सेलुलॉइड का टाइम था और तब मुझे पता है कि जो फिल्म की रील है उसका कितना वैल्यू किया जाता था कि एक फुट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए. तो हम जैसे लोग जो फिल्म बनाने की हिम्मत कर पाए हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्मेट आने की वजह से ही हो पाया. क्योंकि अगर वो सेलुलॉइड का जमाना होता तो हम शायद फिल्म नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी फिल्में फाइनेंशियल वाइबल मतलब अगर हम फिल्मों में इकोनॉमिक्स का दखल कम से कम करना चाहते हैं तो वो डिजिटल फॉर्मेट में ही संभव था. वो अगर वो ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग होती तो तब संभव नहीं था कि आप बॉम्बे से स्टॉक खरीद के पंजाब लेके जाओ, फिर उसको बॉम्बे में आके डेवलप करो, और जो कॉस्ट था तो हम जैसे लोग डेफिनेटली कभी फिल्म नहीं बना पाते. तो ये डेफिनेटली डिजिटल फॉर्मेट आने की वजह से फिल्म ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी सस्ती हो गई है. और दूसरा ये है कि आप पहले बॉम्बे में लैब होती थी तो आपको बॉम्बे में रह के ही काम करना पड़ता था, तो अब आप काम कहीं पे भी रह के कर सकते हैं. मतलब वो एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है. और डेफिनेटली कैमरास भी मतलब बहुत रेंज है डिजिटल फॉर्मेट में. आप सस्ते कैमरा पे भी काम कर सकते हैं. ठीक है, हो सकता है वो उतना अच्छा ना दिखे, लेकिन एटलीस्ट आपकी बात कन्वे हो जाती है. और फिर आप छोटे गांव में बैठ के भी उसको एडिट कर सकते हैं. तो ये काफी सारी फ्लेक्सिबल चीजें आई हैं. और दूसरा ये है कि आपको प्रिंट नहीं भेजना पड़ता कहीं स्क्रीनिंग के लिए. आप आराम से पेन ड्राइव में भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या मतलब इजी हो गया है एक जगह से दूसरी जगह फिल्म को भेजना. अगर कहीं स्क्रीनिंग है तो आप उनको, जैसे आपके साथ मैंने फिल्म शेयर कर ली, तो ये मुझे लगता है डिजिटल फॉर्मेट की वजह से हुआ है. अगर प्रिंट का टाइम होता तो शायद मुश्किल हो जाता. तो डेफिनेटली डिजिटल फॉर्मेट आने की बात हम जैसे लोगों को जिनको कम पैसा खर्च करके फिल्में बनानी है डेफिनेटली हेल्प किया है, और हम अपनी बात कह सकने के काबिल हुए हैं. बाकी ये जरूर है कि ये फिल्म डेफिनेटली इस फिल्म को हमने देखिए क्या है, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमको ये था कि इस फिल्म का पैसा थोड़ा बहुत कहाँ से वापस आ सकता है. क्योंकि अगर नेक्स्ट फिल्म बनानी है, क्योंकि ये फिल्म हमने कलेक्टिव फंडिंग से बनाई है, तो हमारे दिमाग में ये था कि अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा को लगता है कि एनआरआई जो हैं वो हैं, उनके पास स्पेंडिंग पावर है, तो हमारे लिए भी वो बात लागू होती है. और बहुत सारे एनआरआईज हैं जो लगता रंगा सिनेमा देखना चाहते हैं, प्रो पीपल सिनेमा देखना चाहते हैं. तो हमने भी वही एफर्ट किया, और थोड़ा बहुत हमारी फिल्म का काफी सारा हिस्सा जो है वो, जैसे हमने टोरंटो में स्क्रीनिंग की, और टोरंटो में स्क्रीनिंग के बाद हमने उनको कहा कि भाई ये सिनेमा है हम जो बनाना चाहते हैं. हमने फिल्म बनाने से पहले आपको अप्रोच नहीं किया, नहीं करना चाहते थे. अभी आपने हमारी फिल्म देखी है, तो अभी आप हमारी नेक्स्ट फिल्म के लिए अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. तो मतलब एक ही स्क्रीनिंग से हमारी फिल्म का मतलब 4th to 5th हिस्सा रिकवर हो गया इकोनॉमिकली. तो हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब इकोनॉमिकली वाइबल कैसे हो जाएगी फिल्म,
तो हम उसमें भी बहुत सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो गांव का दर्शक है वो 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता है, हमको पता है। लेकिन हमारा सिनेमा उनके लिए इम्पोर्टेंट है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहां से पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिल्म वहां जाके दिखाएंगे नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा हमको लगता है कि मे भी हम लोग भी तो एनआरआई स्क्रीनिंग मतलब टोरंटो में करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, तो डेफिनेटली हमको हमारी काफी सारी फिल्म की जो रिकवरी है वो एनआरआई ऑडियंस की वजह से ही हुई है। मतलब हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि ये सिनेमा इस तरह का फाइनेंशियल वाइबल कैसे हो, जो सिर्फ हमारे लिए ना हो, सबके लिए हो। अगर कल को कोई इस तरह का सिनेमा बनाना चाहता है तो उसके पास एक टेम्पलेट हो जिसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है कोई। Thank you, Rajiv Kumar. Any other questions, comments? Good question. Yes, No, yes, because- yes, yes. Ajanta. Yeah, please First go of ahead. all, I loved it. I'm sorry I have not been able to watch it completely because we're marking exams, end of term. But I really wanted to join the discussion to hear what Rajiv ji had to say. So I want to ask him a general question, and this relates to many of the points that all of you have raised about the status of the intellectual avant-garde, and the relationship between that and the so-called revolutionary subject. And the Kannada film, and how do you Kandhara, which also VIT students are talking about, so how should caste be represented and so on. So in that context, in Punjab, and Rajiv ji knows the context so well. Now we have a very, very effective right-wing populism as well. So say what is this Dera Sacha Sauda and all of that. So, there's also a kind of right-wing mobilization that's looking at precisely that's, the people that have been left out of conventional print and film, the conventional mass media. So does it not work both ways? Nobody has an answer to this, of course, and I'm completely, I'm not expecting an answer, but yes, on the one hand, absolutely, the new media enables so many that were not represented or represented as agential kind of subjects and narratives have now possibilities. And I'm thinking of, forum like Dalit Camera, etc., that have really transformed Roundtable India and those kinds of debates as well. Yet on the other hand, and including Punjab, there's this very, very dangerous right-wing mobilization as well. So what does Rajiv ji think of, and Punjab going to, it's such an interesting state. So in Tamil Nadu, we are very far away, but we follow some of these debates. So I was wondering if he had anything to say about this. I haven't had, as I said, the time to watch the film very closely. As soon as I finish my exam paper marking, I will do, but I really wanted to listen to him today. So thanks, TFO, for another great, opportunity also. मुझे ये लगता है कि पंजाब में अभी भी मतलब पूरा देश जो मेन स्ट्रीम है, जो राइट विंग पॉपुलैरिटी है पूरे देश में, पंजाब में अभी भी वो उतनी पॉपुलर नहीं है। राइट विंग पॉलिटिक्स कह लीजिए या राइट विंग के लोग, डेफिनेटली उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन अभी भी वो मार्जिनलाइज्ड ही है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। क्योंकि देखिए पंजाब में इसलिए जो अभी इलेक्शन होके हटे हैं उसमें जो राइट विंग पॉलिटिक्स करती हैं जो पार्टियां, दे ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत सारा पैसा भी लगाया, पैसा झोंक दिया, लेकिन उनके लोग जीते नहीं हैं। तो पंजाब, और अभी एक रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टूडेंट इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे राइट विंग पॉलिटिक्स करने वाले लोग कहते थे हम लोग अपना झंडा फहराएंगे इस यूनिवर्सिटी के ऊपर, और लेकिन हुआ नहीं कुछ। मतलब उसमें देखिए 2-3 स्टेट के लोग थे, मतलब हरियाणा के लोग थे, हिमाचल में उनकी गवर्नमेंट है, हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट है, वो लगे हुए थे। लेकिन हम लोग जो यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट है, उनको लगता था नहीं यार ऐसा इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, अभी तो नहीं हुआ, वो नहीं जीते। और
मुझे लगता है पंजाब में अभी भी होप है, इसीलिए में भी हम लोग इतना बड़ा मोर्चा लगा के उसको जीतने में सफल हुए कि पंजाब में अभी भी एक तो जो प्रो पीपल लोग हैं वो बहुत सारे ग्रुप में बंट गए हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत सारे सेक्शंस में और ग्रुप्स में बटे हुए हैं, लेकिन जो कॉमन किसी मुद्दे को लेके वो एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज पंजाब में है, जिसकी वजह से राइट विंग जो पॉलिटिक्स है उसके पैर नहीं लग रहे अभी तक पंजाब। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस को खरीद रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो उनको अपनी पार्टियों में शामिल कर रहे हैं, और इवन जो दलित पॉपुलेशन है, जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन अभी भी उनके पैर राइट विंग पॉलिटिक्स के पंजाब में नहीं लगे हैं। मेरी यही ऑब्जर्वेशन। Thank you, sir. And I'm so happy to hear that. Similar things are happening in Tamil Nadu also, but we will just wait to see how things pan out. Thank you. Any more questions? Okay, in that case, we will conclude this evening's session. Thank you all very much for joining the discussion and for your inputs. And thank you, Ruchika, for initiating the discussion. And thank you, Rajiv Kumar, very much for your presence and for telling us so many things that we would certainly have missed had you not been able to join us. So your presence has been really valuable, and we appreciated that you took time off and joined us. Happy Diwali to everybody, and good night and happy holidays. Thank you very much. Thank मेरी you. तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपनी थॉट्स शेयर कर सका, आपने टाइम दिया, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, Rajiv ji. Thank you. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Ruchika. That is Thank really you, nice. Rajiv. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Good night and happy Night. Diwali. Good night.